students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series, and we will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs. And topic for this lecture is structure of atom. Let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notification for the upcoming videos and it will help you to revise the topic thoroughly. Alright. So in the chapter of structure of atom, first of all we will be learning about the fundamental particles, that is electrons, protons and neutrons, their charge, their mass and how they are deflected in presence of electric and magnetic field, etc. Apart from that, we will be coming to models of the atom, particularly the Bohr's model, and what is the radius of various orbits in Bohr model. Apart from that, velocity of electron in various orbits, energy of electron in an orbit, when electron jumps from one orbit to the other orbit, energy is released or energy is absorbed, and that calculation part, how much energy is released or how much is absorbed, that thing we have to learn. And apart from that, some limitations of Bohr's model will also be taken up. The points where this model fails, we will be taking up the dual nature of matter, even the Heisenberg uncertainty principle and de Broglie relationship. All those concepts we will be revising through this video. Let's start with our questions. So, question number 1 on the screen. The first question is, the radius of Bohr orbit is A0. First orbit radius is given to you. It is A0. The electron in nth orbit will have the radius. First orbit का अगर radius हमें पता है, A0 का value दिया है, तो nth orbit means it can be any orbit, second, third, nth orbit में क्या value आएगा वो बताना है. So general expression for radius of nth orbit, it is given by sum R0 into n square upon z. ये जो R0 है ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है. R0 is the fixed value and it is the first orbit radius, right? And in our question, the value of first orbit is given to be A0. So radius of nth orbit will be equal to A0 into n square by z, where n is the number of orbit. Keep in mind, n है यहाँ पे number of orbit, and what is z? Z is the atomic number of the element, or it can be ion, but it has to be the single electron system. एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होना चाहिए. So आपके पास ये जनरल एक्सप्रेशन बन गया कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट का, it is equal to A0 into n square, or I can say it is directly proportional to n square. Got it? तो जितना वैल्यू बड़ा होगा n का, उतना रेडियस बड़ा होता जाएगा. तो C पार्ट में दिया हुआ है, C ऑप्शन इज योर आंसर, A0 into n square. फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कम है, सेकंड का ज्यादा है. सेकंड में आप n की वैल्यू 2 डालोगे तो सेकंड ऑर्बिट इज 4 times बिगर देन फर्स्ट ऑर्बिट, राइट? एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, द radius increases, but it is directly proportional to n square and it was given by Bohr. Got it? Let's come to the next now, question number 2. Second question on our screen. The ratio of radii of first 3 orbits is, first 3 orbits का radius 1:5:33, A option, B is 1:2:3, or 1:4:9, or 1:8:27. So keep in mind, आपको इसके लिए क्या करना है कि जनरल एक्सप्रेशन याद रखना है. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू R0 इंटू n स्क्वायर अपॉन z. ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है. रेडियस डिपेंड करता है n स्क्वायर के ऊपर. n है नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो पहले 3 ऑर्बिट्स मतलब R1 पहले ऑर्बिट का रेडियस ले लो, R2 सेकंड का और R3 थर्ड का. तो ये वैल्यू आ जाएगी. फर्स्ट के लिए आप n1 स्क्वायर डालोगे, सेकंड के लिए आप n2 स्क्वायर, थर्ड के लिए आप डालोगे n3 स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सेकंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड के लिए हम कर देंगे 3 का स्क्वायर. सो 1:4:9. दिस इज द रेडियस रेशियो फॉर फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स. I mean to say the C option is the answer, 1:4:9.
Got it? The answer is written in ऑप्शन सी. सिंपल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड रेडियस के ऊपर थे. जनरल एक्सप्रेशन रेडियस का लर्न करेंगे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. गॉट इट? So let's come to the next question now. Question number 3. According to Bohr's theory, the angular momentum of electron in the fifth orbit is. बोहर postulate में angular momentum का जो postulate है वो main है. mvr is the angular momentum. It is equal to nh by 2 pi. Keep in mind, angular momentum जो होता है वो whole number multiple है h upon 2 pi का. n is an इंटीजर वैल्यू विल बी 1 2 3 4. ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लेना है. फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n इज 2. उस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे. क्वेश्चन ने दिया है फिफ्थ ऑर्बिट. सो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए हम n का वैल्यू 5 पुट कर देंगे. देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू 5h अपॉन 2 पाई. 5h अपॉन 2 पाई मीन्स इट इज 2.5h अपॉन पाई. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. ए ऑप्शन में तो 25h अपॉन पाई दिया है, 1 अपॉन पाई 1h अपॉन पाई, देन 10h अपॉन पाई. 2.5 is written in D option. That is the answer. Correct answer is option D. Angular momentum which is given by mvr is equal to 2.5h upon pi for fifth orbit. Got it? Coming to the next now, question number 4. Bohr's model can explain spectrum of hydrogen atom only. B option is spectrum of any atom or ion having one electron, spectrum of hydrogen molecule और solar spectrum. देखिए बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे फिर वो एटम हो चाहे वो आयन हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम. उसके बाद हीलियम पे ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. 2 इलेक्ट्रॉन होने से फिर रिपल्शंस होती हैं. दोज रिपल्शंस एंड अट्रैक्शंस वर नॉट कंसिडर्ड बाय बोहर. बोहर ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम किया जो कि हाइड्रोजन था, जहां एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है. तो हीलियम की जगह आप He+ लिख सकते हो क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया. उसके बाद लिथियम के ऊपर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए. एक्चुअली तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रिमूव करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा. बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट हमने लिख दिया है Be+3 तो इट विल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन. ऑल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन कर सकता है. सो अवर आंसर इज इट कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एटम और आयन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. गॉट इट? सो बी ऑप्शन इज द आंसर. सी गलत है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया है. H2 के अंदर तो 2 एटम हुए. 2 एटम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन. उस पे बोहर मॉडल काम नहीं करता. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बोहर के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, चाहे हम रेडियस की बात करें या वेलोसिटी की या एनर्जी की या एंगुलर मोमेंटम. ऑल ऑफ देम विल बी फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. गॉट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 5. The speed of an electron in Bohr orbit of hydrogen atom in the ground state is equal to c और c by 2, c by 10 और c upon 137. आपको पता होगा कि c जो है ये velocity of light का symbol होता है. c is the symbol for velocity of light. फिजिक्स में भी यूज करते हो आप. एंड c का वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. राइट तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है. बट फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है उसके साथ कंपेयर करना है. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन इज 1s1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. उसके अंदर वेलोसिटी जो होती है दैट इज 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी का वैल्यू हमें याद होना चाहिए. किसी भी ऑर्बिट के लिए पूछ सकते हैं. बट इसको कंपेयर करेंगे विद c. अगर हम v/c कर दें तो v का वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, वो ये. और कंपेयर करेंगे लाइट की वेलोसिटी के साथ विच इज 3 × 10⁸. ये v/c डिवाइड करने के बाद आ रहा है 1/137. Got it? Can I write velocity of electron in hydrogen atom is 1/1
137 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3, ये कट करके 1 अपॉन, ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 137 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 अपॉन 137। गॉट इट। तो रिजल्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट अगर हम लर्न कर लें तो पेपर में फिर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करो तो क्या वैल्यू आएगी। लाइट की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 137 टाइम्स ज्यादा है। गॉट इट। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और वैल्यू से प्रूव भी कर सकते हैं, आपको वैल्यूज लर्न करनी है। आंसर है हमारा ऑप्शन डी। गॉट इट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। Question number 6. With the increasing principal quantum number, the energy difference between adjacent levels in hydrogen atom. अगर principal quantum number n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे अगर, तो एनर्जी डिफरेंस क्या कम होगा या एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये आंसर देना है। एक ऑप्शन में लिखा है डिक्रीजेस, एक में लिखा है इंक्रीजेस, एक में लिखा है रिमेन्स कांस्टेंट, फिर डी में लिखा है डिक्रीज फॉर लो वैल्यू ऑफ जेड एंड इंक्रीजेस फॉर हायर वैल्यू ऑफ जेड। देखो पहले हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का ये एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी शुड लर्न द वैल्यू प्रॉपरली, बार बार ये वैल्यू यूज होती है। सेकेंड ऑर्बिट पे जाते हैं। सेकेंड ऑर्बिट है -3.4। ये कैसे आया वैल्यू? एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन एटम। तो मैंने 13.6 को 2 का स्क्वायर लिया जो कि 4 होता है, उससे डिवाइड कर दिया तो वैल्यू आ गई -3.4। गॉट इट। तो सेकेंड ऑर्बिट का भी वैल्यू लिख दिया है। ये था फर्स्ट ऑर्बिट, ये था सेकेंड ऑर्बिट। अब हम आते हैं थर्ड ऑर्बिट के लिए। थर्ड ऑर्बिट का वैल्यू है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आया -1.5? वो भी यहां मेंशन कर देते हैं। फॉर थर्ड ऑर्बिट इट इज -13.6 अपॉन 9। ये 1.5 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। लेट्स राइट हेयर द ऑर्बिट नंबर 3। नाउ आई हैव फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट को भी रेड कलर से ही ड्रॉ करना चाहिए। सारे ऑर्बिट्स का कलर सेम है बट हमने मार्क किया है ब्लैक से। तो फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी का वैल्यू है -0.85। वो कैसे आया? वो आ रहा है 13.6 को 16 से डिवाइड करके। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे, जनरल एक्सप्रेशन में n स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। तो अब गैप देखो, फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो आप E2 - E1 करोगे तो ये आएगा +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी के थ्रू आप देखो अभी कि एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज। सेकंड के अंदर जब डिफरेंस लिया जाएगा इट विल कम आउट टू बी 1.9। मैंने क्या किया? E3 - E2 पहले केस में किया था, E2 - E1, सेकंड में E3 - E2। आगे चलते हैं। अब हम कर देंगे E4 - E3। वैल्यूज आपके सामने है, E4 की भी E3 की भी। माइनस करके देखिए, ये गैप आएगा 0.65। तो इस तरीके से एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। अब देखो पहले से दूसरे का जंप बहुत हाई है। फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। बट अगर आगे जाते हैं सेकंड से थर्ड सिर्फ 1.9, थर्ड से फोर्थ 0.65। तो इस तरीके से एनर्जी गैप चेंज हो रहा है और डिक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट टू सेकंड जंप इज द हाईएस्ट जंप। हेंस we can make a statement energy levels are not equally spaced. Energy levels are not equally spaced. Got it? Gap between the levels, gap between the various energy levels decreases as द n वैल्यू इंक्रीजेस। जैसे जैसे n इंक्रीज होता है ये गैप कम होता जाता है और डायग्राम के थ्रू वैल्यूज आपको दिखा दी गई हैं। जनरल एक्सप्रेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन ए कि इनका गैप जो है
वो कम होता जाएगा। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे गैप कम होगा, और 7th 8th के बाद तो गैप इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वो एक कॉन्टिन्यूअम दिखता है। ठीक है, एक लेवल दूसरे लेवल तीसरे लेवल के बीच में गैप बहुत ही कम हो जाता है एनर्जी का। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जंप भी जल्दी करता है, बट फर्स्ट से सेकंड का जंप मोस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस ने टाइटली होल्ड कर रखा है, इसलिए वो जंप डिफिकल्ट है। गॉट इट? सो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एनर्जी। Coming to the next now, question number 7. The ratio of radii of first orbits of hydrogen He plus and Li plus 2 is, कौन कौन से दिए? एक हाइड्रोजन, पहले जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं रेडियस का। क्वेश्चन रेडियस के ऊपर है, R1 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। R1 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। अब सबके लिए ही फर्स्ट ऑर्बिट दिया है हमें हाइड्रोजन का, He प्लस का और Li प्लस 2, सबका ही फर्स्ट ऑर्बिट दे रखा है। तो कैन आई से दिस इज R1 अपॉन 1, यहां पे है R1 अपॉन 2, यहां पे है R1 अपॉन 3, 1:1/2 ये आपके पास 1:2 1/3 आ रहा है। तो रेशो ले लो, 1/1:1/2:1/3 ये आ गया ना। तो अब 6, अगर इसको मैं होल नंबर बनाऊं तो ये 6:3:2 बन रहा है। गॉट इट? तो हमें रेडियस का रेशो बताना था फॉर हाइड्रोजन, फॉर He प्लस एंड फॉर Li प्लस 2। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। गॉट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 8. Zeeman effect explains the splitting of lines in मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और बोथ। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जीमन इफेक्ट जो है, जीमन इफेक्ट किसका नाम है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम लिया जाए तो फिर एक जहां लाइन आती है उसकी जगह छोटी छोटी फाइन लाइंस भी साथ में आती हैं। ये देखो, लेट्स से ये कोई फर्स्ट लेवल है, ग्राउंड लेवल, लेट्स से कि ये सेकंड लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट टू सेकंड, फिर सेकंड से फर्स्ट पे जब वो फॉल करेगा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लाइन आनी चाहिए। बट यही स्पेक्ट्रम अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया जाए तो जहां पे सिंगल एक लाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी लाइंस भी आती हैं। ये जो छोटी लाइंस आ रही हैं इनको फाइन लाइंस बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज फाइन लाइंस। तो क्यों आती हैं फाइन लाइंस? जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया तो मेन लाइन के साथ छोटी लाइनें क्यों आई? उसका रीजन है कि जो एक ऑर्बिट है उसके अंदर सब ऑर्बिट भी होते हैं, मतलब सब शेल्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जंप करेगा, वो बीच के किसी सब लेवल पे भी जंप हो सकता है। इस वजह से छोटी लाइंस आती हैं। जैसे कि 1 to 2, फिर आगे 2 से 3 जाओगे तो फिर 2s 2p, 3 में जाओगे तो 3s 3p 3d, आगे आगे पार्ट्स होते हैं ना। फर्स्ट ऑर्बिट का कोई पार्ट नहीं है फर्दर, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर सबशेल नहीं है, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके सबशेल्स हैं। तो वो जब सबशेल के अंदर जंप होता है तो फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमें किस साइंटिस्ट ने दिखाया? जीमन ने। उसने स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया और ये शो किया कि अपार्ट फ्रॉम सिंगल लाइन मैनी स्मॉल लाइंस आर ऑल्सो कमिंग। दिस इज कॉल्ड एज जीमन इफेक्ट। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो उसको फिर स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। दोनों साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है वो जीमन के नाम से रिलेटेड है। आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज गिवन। कितना? 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है।
पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ZE² अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। दो चार्जेस कौन कौन से, ये न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है प्लस ZE, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एटम के अंदर उसके ऊपर चार्ज है -E। तो फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ZE² अपॉन R ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसका रिलेशन मुझे काइनेटिक एनर्जी के साथ ढूंढना है। काइनेटिक एनर्जी तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, हाफ mv² होता है। इसको रिलेट करेंगे, अब मैं काइनेटिक एनर्जी को चार्जेस की टर्म्स में लिखूंगी। कैसे, देखो हमारा रिजल्ट ही आएगा, पहले आप रिजल्ट देख लो, हाफ इंटू ZE²/R ये रिजल्ट आएगा। बट इस रिजल्ट का प्रूफ क्या है, हम जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के राउंड तो हम ये कर देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस is equal to the centripetal force. It is equal to the centripetal force. तो force of attraction होती है by Coulomb's law is equal to ZE²/R²। centripetal force होती है mv²/R। ये सब एक्सप्रेशंस आप फिजिक्स में पढ़ते हो ऑलरेडी। तो क्या हम यहां से mv² का वैल्यू निकाल सकते हैं? ये R और R तो एक R कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा। mv² का वैल्यू आ गया ZE² अपॉन R। एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। सो आई विल राइट हाफ इंटू mv² की जगह लिख दिया ZE²/R। तो काइनेटिक एनर्जी का ये आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। ये रिजल्ट मैंने आपको जो बताया था, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ZE²/R। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखो, वो तो है ZE²/R और काइनेटिक एनर्जी में आगे हाफ लगा है। कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया था इसका, 3.02। पोटेंशियल एनर्जी की जगह दिया हुआ था 3.02। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हेंस काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 3.02 का हाफ कर दो, it is 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गॉट इट। सो आपका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट था। दोनों का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। Coming to the next now, question number 10. If the velocity of electron is v1, electron का velocity है v1 in the first orbit of hydrogen atom, then the velocity in the second orbit will be, velocity के ऊपर question है, बोहर के successes में main velocity, radius, energy, number of revolutions and angular momentum ये सब आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी गिवन है। जो गिवन है वो पहले नोट करो। फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू बी v1, गॉट इट। तो अब आपको सेकेंड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। फॉर सेकेंड ऑर्बिट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जनरल एक्सप्रेशन देखिए, velocity of electron in nth orbit is given by v1 into z upon n। एक्सप्रेशन याद रखना है, जैसे रेडियस में याद रखा था, वहां n² था, वहां n² न्यूमरेटर में था ना कि डिनोमिनेटर में। यहां डिनोमिनेटर में n है, तो z है यहां पे एटॉमिक नंबर एंड n क्या चीज है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। गॉट इट, सिंबल्स शुड बी वेरी क्लियर। जनरल एक्सप्रेशन को हम हाईलाइट कर देते हैं। तो अब फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी हमें पता है, सेकेंड ऑर्बिट में कैलकुलेट करना है। फॉर हाइड्रोजन एटम z तो 1 हो गया, सो v1/2। अगर ये थर्ड ऑर्बिट होता तो मैंने v1/3 लिखना था। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेकेंड ऑर्बिट में फर्स्ट के कंपैरिजन में हाफ होता है। सो आंसर इज v1/2। इन द सेकेंड ऑर्बिट वेलोसिटी विल बी हाफ एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट।
पहले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, सेकंड में हाफ हो गई, थर्ड में काउंट करोगे तो 1/3 हो जाएगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे हाई अट्रैक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट फास्ट नहीं घूमेगा तो वो अल्टीमेटली जाके पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन फास्टेस्ट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है इन द first orbit. Got it? So question was simple but important. Let's come to the next now. Question 11. The velocity of electron in fourth orbit of hydrogen is given. Fourth orbit में velocity है v. The velocity of electron in the first orbit would be. So फिर से जनरल एक्सप्रेशन वेलोसिटी का v1 into z upon n. I mean to say इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, z इज द एटॉमिक नंबर। तो फोर्थ ऑर्बिट का वेलोसिटी आपको गिवन है विच इज इक्वल टू v। दिस इज गिवन बाय द क्वेश्चन। फोर्थ ऑर्बिट वेलोसिटी इज v। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। कैसे निकलेगा? तो n का वैल्यू इस जनरल एक्सप्रेशन में हम पुट कर रहे हैं 4। velocity of fourth orbit is v1 upon 4। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दिया है? v। कैन इट बी कैलकुलेटेड फॉर फर्स्ट ऑर्बिट? अभी हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 4 इंटू वी। जो भी फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट ऑर्बिट में उसके कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा वेलोसिटी रहेगा। सो आपका आंसर है 4v। 4v का मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी फोर्थ के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा है। फर्स्ट का वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा है। फिफ्थ के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा है। सो जैसे जैसे आगे जाते हैं फिर वेलोसिटी कम होती जाती है। वो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n वैल्यू है। जनरल एक्सप्रेशन का इंपॉर्टेंस है। ये नहीं याद है अगर, तो ऑब्वियसली फिर आपके क्वेश्चन वेलोसिटी के गलत हो जाएंगे। मेन 3 चीजें हैं, एक वेलोसिटी, एक रेडियस और एक एनर्जी। बी केयरफुल फॉर देम। Let's come to the next now, question number 12. This question is on radius again. If the radius of third orbit of hydrogen is given, third orbit का radius है 476 picometer, then the radius of fourth orbit of hydrogen atom will be. कैसे करना है? थर्ड ऑर्बिट में रेडियस गिवन है और हमें फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है। जनरल एक्सप्रेशन चाहिए। इट इज Rn is equal to R1 into n square upon z। Got it? तो अब देखो आपके पास थर्ड ऑर्बिट का है, पहले उससे आप फर्स्ट का पता कर लो, फिर हम फोर्थ का निकालेंगे। हमारे को फोर्थ का निकालना है, थर्ड का गिवन है R3 is equal to R1 into 3 square। थर्ड के लिए मैंने n का वैल्यू 3 डाल दिया। ये है 476 इज इक्वल टू R1 इंटू 9। देयरफॉर R1 इज 476 अपॉन 9। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया। अब मुझे अल्टीमेटली फोर्थ का कैलकुलेट करना है। कैन आई राइट रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज R1 इंटू 4 स्क्वायर। कहने का मतलब फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट से 16 टाइम्स ज्यादा है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है, डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करे बिना बस वैल्यू डाल दो, 476 अपॉन 9 इंटू 4 स्क्वायर विच इज 16। सो ये आपके पास आंसर आ गया। रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इसको हम R1 भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज R1 इंटू 16। दिस इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट। लेट्स सी दी ऑप्शन। कंपेयर करनी पड़ेंगी सारी ऑप्शंस। आपके पास न्यूमरेटर में देखो हमें चाहिए 16, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 9। तो आंसर बनता है ऑप्शन बी, 16 इन द न्यूमरेटर, 9 इन द डिनोमिनेटर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? तो एक ऑर्बिट से दूसरे का रेडियस इस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। जनरल एक्सप्रेशन हम फिर से हाईलाइट कर देते हैं, दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू हीलियम और Li+2 और He+2 और नन ऑफ दीज। हीलियम का एटॉमिक नंबर तो है 2। एटॉमिक नंबर Z फॉर हीलियम इज 2। फॉर लिथियम Z is 3। फॉर He+ Z is 2।
बट एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। हमें क्या देखना है, बोहर मॉडल तभी एप्लीकेबल होगा अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एटम है या आयन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हीलियम में तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Li+2 इज गिवन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1, क्योंकि लिथियम के ऊपर +2 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो 3 - 2 किया 1 इलेक्ट्रॉन। He+2 है 0 इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स Li+2 इज द आंसर, मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन था। आपको एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर किसी भी आयन में, किसी भी एटम में किसके इक्वल होता है? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज ऑन एनर्जी नाउ। The ratio of difference in energy of electron between the first and second Bohr orbit to that between second and third orbit is। देखिए, रेडियस के क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, वेलोसिटी के कर लिए, ये क्वेश्चन है एनर्जी के ऊपर। एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है माइनस जनरल एक्सप्रेशन E1 इंटू Z²/n²। कहने का मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी E1, Z है एटॉमिक नंबर और N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हमें कंपेयर क्या करना है? क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट एंड फिर सेकंड एंड थर्ड, इनका रेशो लेना है। E2 - E1 को कंपेयर करो विद E3 - E2। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए Z तो सब जगह 1 लेना है, क्योंकि बोहर ऑर्बिट बोला है, मतलब बोहर ने हाइड्रोजन पे काम किया, तो आपने Z तो 1 लेना है। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है -E1/4, क्योंकि n² करना है ना, n डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लेना है। ये मैंने सेकंड ऑर्बिट का लिख दिया, फिर मैंने फर्स्ट ऑर्बिट का भी लिख दिया। डिवाइड किससे करेंगे? थर्ड से। थर्ड ऑर्बिट का है E1/9, सेकंड का है E1/4। गॉट इट? तो ये रेशियो निकालनी है। दिस इज इक्वल टू -E1/4 प्लस E1/1। ब्रैकेट खोल देते हैं अब हम। -E1/9 फिर माइनस माइनस प्लस E1/4। तो अब क्या करेंगे? -E1 मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन फैक्टर। 1/4 - 1/1। डिनोमिनेटर में -E1 बाहर एंड 1/9 - 1/4। E1 एंड E1 गॉट कैंसल्ड एंड आपकी इक्वेशन बन जाएगी, न्यूमरेटर बन गया 3/4। 4 आपने एलसीएम लिया 3/4 और डिनोमिनेटर बन गया 5/36। नेगेटिव नेगेटिव मैंने कैंसिल कर दिया है। एज अ रिजल्ट 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 36/5। तो सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 9, राइट? तो ये बन रहा है 27/5, 27/5। गॉट इट? फिर से देख लो, पहले न्यूमरेटर में क्या रखा है? न्यूमरेटर में है E2 - E1, डिनोमिनेटर में E3 - E2। तो उनके एनर्जी के एक्सप्रेशंस लिखे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट किया और एलसीएम लेके हमने उनको सॉल्व किया। रेशो आ रहा है 27/5। हेंस आवर आंसर ऑप्शन बी, 27/5 मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों के ऑर्बिट्स का एनर्जी का वैल्यू का डिफरेंस लेके फिर रेशो लेना था। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब तक ये जनरल एक्सप्रेशन नहीं पता है तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। रेडियस में जनरल एक्सप्रेशन में n² न्यूमरेटर में आता है और एनर्जी में n² डिनोमिनेटर में आता है, और एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में नेगेटिव होती है, इसलिए फ्रंट पे नेगेटिव का साइन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 15th। If the total energy of an electron in a hydrogen-like atom in excited state is given, then its de Broglie wavelength is। wavelength calculate करनी है। Options are 3.6 × 10⁻⁻7 और 6.6 एंड सो ऑन। आपके साथ सामने सारी ऑप्शंस हैं और मीटर के अंदर वैल्यूज हैं। What is given? total energy in an excited state। अब जो भी ये स्टेट है
फर्स्ट ऑर्बिट है या सेकंड ऑर्बिट है? असल में ये सेकंड ऑर्बिट है। क्या हमें वैल्यूज याद है? ये देखो, फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6 होता है, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3.4। तो मतलब ये सेकंड ऑर्बिट की बात हो रही है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली, सीधा सीधा नहीं बता रहा कि सेकंड ऑर्बिट है, ऐसा बोला है, कोई एक्साइटेड स्टेट है। तो जो भी टोटल एनर्जी होती है उसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। टोटल एनर्जी अगर -3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू +3.4। ये बात याद रखनी है। फिर से हम ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? तो ये आपके पास आया था ZE² अपॉन 2R। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डिराइव करके भी आपको दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी ZE² अपॉन 2R होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है -ZE² अपॉन R। तो हम यहां से ZE² अपॉन R अगर कॉमन ले लें तो 1/2 - 1/1 कैन इट बी रिटन एज -ZE² अपॉन R विद ए नेगेटिव साइन एंड 2 भी लगेगा। मैंने क्या किया है, हाफ -1 को सॉल्व किया तो -हाफ आया। ये टोटल एनर्जी होती है। सो फिर से देख लो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। टोटल एनर्जी है -ZE² अपॉन R और काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज +ZE² अपॉन 2R। दोनों में सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क होता है। तो हमें टोटल एनर्जी क्वेश्चन में किसी भी ऑर्बिट का अगर दिया है, आप उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, बट एक साइन को चेंज करना है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। एनीवे, अब आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने आपको कहा लैम्डा कैलकुलेट करिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। सो क्या रिलेशन होता है? लैम्डा इज h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें खुद लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। तो आप सबके वैल्यूज डालो, मास का भी, प्लैंक्स कांस्टेंट का भी। इट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 -34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, अपॉन √2 इंटू मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी है 3.4, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में। सो मल्टीप्लाई विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19। गॉट इट? कीप इन माइंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जनरल एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली हमें अपना आंसर तो मीटर में चाहिए, हमें आंसर SI यूनिट में चाहिए, तो सारे SI यूनिट्स रखने पड़ेंगे। गॉट इट? तो लैम्डा का वैल्यू डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻10 एंड इट विल बी इन मीटर्स। आपको इस क्वेश्चन के लिए रूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस पे आते हैं। 6.6 इंटू 10⁻⁻10 मीन्स हमारा आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन है, ये डी ब्रॉगली रिलेशन से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2me, वेयर E इज द काइनेटिक एनर्जी बट रूट लगता है, और डी ब्रॉगली रिलेशन लैम्डा इज h अपॉन mv तो हम यूज करते हैं, बट ये कब करते हैं? अगर वेलोसिटी दिया हो। हमारे क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं दिया था, काइनेटिक एनर्जी दिया था, तो ये एक्सप्रेशन यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम। लैम्डा इज h अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 16. A typical golf ball weighs 40 gram. If it is moving with a velocity of 20 meter per second, its de Broglie wavelength is. बॉल का वेट दिया है आपको 40 ग्राम, मास ऑफ द बॉल इज 40 एंड वेलोसिटी इज गिवन। एक चीज हमें दी है CGS यूनिट्स में, एक दिया है SI यूनिट्स में। अल्टीमेटली हमें लैम्डा निकालना है और वो भी नैनोमीटर में निकालना है। पहले हम सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम नैनोमीटर बनाएंगे। तो देखिए, हम एक्सप्रेशन पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। डी ब्रॉगली रिलेशन है कि वेवलेंथ उसकी ज्यादा होती है, उस पार्टिकल की ज्यादा होती है जिसका मास कम होता है। m डिनोमिनेटर में आता है, वेलोसिटी भी डिनोमिनेटर में आती है। सो
मास को तो हम लिख देंगे 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मास को तो केजी में लेना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है, वेलोसिटी तो ऑलरेडी मीटर्स के अंदर है, मीटर पर सेकंड में, राइट। तो लैम्डा इज 6.626 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास कितना है 40 इंटू 10⁻³ ये केजी में। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट तो होते हैं जूल सेकंड, सब एसआई यूनिट में कर दिया। वेलोसिटी इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट्स, मीटर पर सेकंड। गॉट इट। तो अब लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, जो भी लैम्डा का वैल्यू आएगा वो पहले मीटर्स में आएगा। आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 8.28 इंटू 10⁻³ बट इट इज इन मीटर्स, दिस इज इन मीटर्स। और ऑप्शंस देखो, सारी की सारी ऑप्शंस हैं नैनोमीटर के अंदर। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर इज 10⁻৯ नैनोमीटर। गॉट इट। तो थोड़ा क्लियर करके लिख देते हैं, नैनोमीटर इज nm। ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू थी 8.28 इंटू 10⁻³ ये मीटर्स में था, मैंने 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये नैनोमीटर में बन जाए। 8.28 इंटू 10⁻25 नैनोमीटर इज द आंसर। सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 8.25 इंटू 10⁻25। गॉट इट। सो डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन था। ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करता है, जिस पार्टिकल का मास है उसके साथ वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगी, बट हायर मास विल हैव लेस वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन 17। Two particles of mass m and 2m, they have equal kinetic energies. The de Broglie wavelength are in the ratio of। पार्टिकल्स के मास और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन चाहिए, तभी आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me। गॉट इट। यहाँ पे याद रखना है, ये जो E है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। या इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी हम इक्वेशन लगाते हैं, कभी बॉल पे लगाते हैं, कभी किसी प्रोटॉन पे लगा सकते हैं। जनरल एक्सप्रेशन याद रखिए। अब दो पार्टिकल्स के मास दिए हैं, एक का m और एक का 2m, रेशो लेना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी उनकी इक्वल दी है। सो कैन आई राइट λ1 by λ2 इज इक्वल टू √m2 by m1। बाकी सारे फैक्टर जो कॉमन थे हमने कैंसल आउट कर दिए। तो एक का है λ1, एक का λ2, तो सेकेंड पार्टिकल का मास है 2 टाइम्स, फर्स्ट का 1 टाइम। चेक करते हैं, क्वेश्चन में ये दिया था ना, एक का मास m, एक का 2m, तो हम इसको 2m, इसको m लिख देते हैं। कैन इट बी रिटन एज √2/1, λ1/λ2 इज √2/√1। एज अ रिजल्ट आपके क्वेश्चन की ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन में था 1:1, 1:2, 1:√2, तो आंसर बन रहा है ऑप्शन डी, √2:1। ये चेक करो, √2:1 हमारे पास वैल्यू आ रही है। गॉट इट। तो इस तरीके से लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के साथ जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। अ 1 gram projectile is shot from a gun with a velocity of 100 meter per second। डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। पार्टिकल का मास दिया है 1 ग्राम और वेलोसिटी भी दिया है। तो जनरल एक्सप्रेशन लैम्डा इज h/mv, बट ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना होता है कि यूनिट्स सेम यूनिट्स होना चाहिए। मास ग्राम में दिया है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। h है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और मास के लिए 1 ग्राम, मैंने 1 ग्राम की जगह 1 इंटू 10⁻³ कर दिया ताकि ये किलोग्राम बन जाए। और वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। एज अ रिजल्ट जब आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे आंसर सीधा सीधा मीटर के अंदर आएगा, क्योंकि हमने सारे चीज़ों को SI यूनिट में लिख लिया है। गॉट इट। तो ये आएगा 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर्स। एंड ऑप्शन बनता है सी, -33 मीटर मीन्स
सी पार्ट इज द आंसर। सो इम्पॉर्टेंस क्या था, सिर्फ ये कि यूनिट सेम होने चाहिए। सेंटीमीटर में वेलोसिटी है, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, मास को किलोग्राम में रखें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is increased 4 times, its de Broglie wavelength associated would be. Let's write the expression. So the options are 4 times, 2 times, half time or 1/4 time. Kinetic energy को 4 गुना बढ़ा दिया है। Kinetic energy is increased 4 times. Then the wavelength associated would be. तो देखिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई। गॉट इट। ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, कीप इन माइंड ई इज द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया, बट है तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, मतलब मास चेंज नहीं होगा। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 रेशो विल बी अंडर रूट ऑफ E2 अपॉन E1। अब नए वाला काइनेटिक एनर्जी जो E2 है वो फर्स्ट वाले से 4 टाइम्स हैवियर है। विल यू गेट लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2। रूट लेने के बाद ये 2 आ गया, E1 और E1 कैंसिल हो गया। सो लैम्डा 1 इज 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, हेंस लैम्डा 2 इज हाफ ऑफ द लैम्डा 1। नया वाला जो वेवलेंथ है वो प्रीवियस वेवलेंथ का हाफ टाइम्स है, आधा हो जाएगा। आंसर आपका बनेगा सी। E2 वैल्यू चाहिए, लैम्डा 2 वैल्यू, सॉरी E2 तो दिया हुआ है ना, E2 इज 4 टाइम्स ऑफ E1, तो लैम्डा 2 इज हाफ ऑफ लैम्डा 1। गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन IE for Li plus 2 is question mark. For hydrogen the value is given. तो देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज इक्वल टू हाइड्रोजन लाइक आयन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय Z² होता है। तो आपने क्या करना है, हाइड्रोजन का वैल्यू पुट कर देना है। हाइड्रोजन है राइट पे, Li plus 2 है लेफ्ट पे। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z²। Z है 3, Li plus 2 के लिए ये 3 होता है, सो इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 9, इट इज इक्वल टू 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। IE ऑफ Li plus 2 is 122.4। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में He+1 आ जाता तो 4 टाइम्स होता, हमारे पास आ रहा है Li plus 2 तो ये 9 टाइम्स है, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 9 ये बनता है 122.4। गॉट इट। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। Which of the following electronic transition would require the largest amount of energy? N is equal to 1 to 2 or 2 to 3 or 1 to 4 और 3 to 5। तो देखिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं गैप कम होता है, हमने ये प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा भी था। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, ये समझ लो सेकेंड, and let's say here is the third orbit, then you have fourth orbit, then you have fifth orbit। गैप कम करना है, इक्वल गैप नहीं देना, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब एक ऑप्शन है, फर्स्ट वाली ऑप्शन तो है कि 1 से 2 में जंप करना है, सेकेंड ऑप्शन है 2 से 3, 2 से 3 का जंप तो कम होगा, हमें लार्जेस्ट का आंसर करना है, विच विल रिक्वायर लार्जेस्ट एनर्जी। फिर थर्ड ऑप्शन है 1 to 4, 1 to 4 वुड बी लार्जेस्ट, क्योंकि इसमें कितने लेवल क्रॉस हो रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और डी ऑप्शन है 3 to 5। तो कैन आई से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट। तो आपका आंसर तो हो गया 1 to 4, 1 to 4 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बट अब ये वाली चीज हम वैल्यूज के थ्रू भी शो कर सकते हैं। देखो कैसे, N1 से अगर N2 में जाना है तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी है
-13.6, सेकेंड का एनर्जी है -3.4। अब हम डिफरेंस ले लेते हैं डेल्टा ई हमें किस किस का निकालना है, E2 माइनस E1 का, तो ये हो जाएगा -3.4 फिर -13.6, ये वैल्यू का गैप आता है 10.2। This delta E is equal to 10.2 electron volt. Coming to the second, E2 N2 to N3। अब हम सेकेंड ले रहे हैं, N1 को ले लो 2 और जाना कहाँ है N2 में जो कि 3 है। फिर से आपको E3 माइनस E2 करना पड़ेगा। E3 का वैल्यू -13.6/9 और इसका वैल्यू -13.6/4, ये 9 से डिवाइड करके -1.5 और ये -3.4, डिफरेंस आ गया +1.9। तो ये तो वैल्यू कम है। फर्स्ट केस में 10.2 आई थी, अभी तक हमने 2 ही केस करे। ये फर्स्ट था, उसका आंसर आया था 10.2, सेकेंड किया उसका आंसर आ रहा है 1.9। थर्ड ऑप्शन में लिखा था 1 से 3, तो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 नहीं 4 लिखा था। ये सी ऑप्शन है, क्वेश्चन में चेक कर लो। n 1 से लेके 4 तक जाना है। फिर से हम वैल्यू लिखेंगे, दिस इज E4 माइनस E1। E4 का है -13.6/16, E1 का है -13.6/1। गॉट इट। तो वैल्यूज नहीं भी याद हो तो भी आंसर तो आपका आ रहा है, बट वैल्यू के थ्रू वो प्रूफ हो जाएगा। सो -13.6/16 प्लस 13.6/1, ये वैल्यू का डिफरेंस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 3 ऑप्शंस हो गए। डी ऑप्शन देखते हैं, 3 to 5 का चेक करना है। डी में आई एम राइटिंग n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 5। तो अब आप क्या करोगे, डेल्टा E इज इक्वल टू E5 माइनस E3। E5 में -13.6/25 और इसमें -13.6/9। इस तरीके से जब हम डेल्टा E कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव वैल्यू 0.956। गॉट इट। सो सारी वैल्यूज डी ऑप्शन की और सी ऑप्शन की हम हाईलाइट कर देते हैं। फिर हम देखेंगे लार्जेस्ट गैप किसका आया। लार्जेस्ट 12.75 आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा था 10.2। तो लार्जेस्ट जंप डायग्राम से ऑलरेडी दिख भी रहा था। सो यू आर हैविंग सी ऑप्शन एज योर आंसर। गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन 22, how fast is the electron moving if it has a wavelength equal to distance it travels in 1 second? आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। एंड क्वेश्चन ने कंडीशन दिया है, वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है कि नहीं। So lambda and v are given to be equal in the question. Let's apply the de Broglie concept. In de Broglie's equation ये बन गया lambda is equal to h/mv। अब lambda and v are said to be equal, therefore दोनों को मैंने v कर दिया, लेफ्ट पे v स्क्वायर बन गया, it is equal to h/m, hence v is equal to h/m under the root। कहने का मतलब हमने ये कंडीशन लगा दी अपनी इस इक्वेशन के ऊपर। इस इक्वेशन पे जब आप इक्वेशन में कंडीशन लगाओगे लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी, देन लेफ्ट पे आ जाएगा v स्क्वायर और राइट पे h/m, हेंस v कैन बी कैलकुलेटेड। गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन था, डी ब्रॉगली से रिलेटेड था। आपका आंसर है ऑप्शन बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 23। The uncertainty in position of a particle, minute particle of mass 25 gram in space is given 10 raised to power minus 5 meter. What is the uncertainty in velocity? And answer is to be reported in meter per second. तो देखते हैं हम क्या करते हैं। एक बारी रिलेशन लगाएंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या इक्वेशन है, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, और साइंटिस्ट का नाम है हाइजेनबर्ग जिसने आपके पास ये रिलेशन दिया। तो अब हम लैम्डा v कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा v इज क्वेश्चन मार्क एंड लैम्डा x इज गिवन टू अस।
10 raised to power minus 5 मीटर. दिस इज लैम्डा एक्स. और मास तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता है, नहीं इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन नहीं है. दिस क्वेश्चन इज ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 25 ग्राम. मास को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg ले लेंगे. ये मास है और डेल्टा वी निकालना है. प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. सो एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे. डेल्टा एक्स की जगह पहले सिर्फ डेल्टा वी लेफ्ट पे रखिए, बाकी सब राइट पे ले जाइए. इट इज h अपॉन 4 पाई इंटू m डेल्टा एक्स. गॉट इट. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई है 3.14. मास 25 ग्राम था, उसके केजी बना लिए हमने. और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? 10 रेज टू पावर माइनस 5. Got it? Simple calculation now will give you the answer. ये बन रहा है 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. इट मीन्स आंसर है ऑप्शन सी. माइनस 34 नहीं है बेटा, ये माइनस 34 तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी वैल्यू आएगी ना. ये 10 रेज टू पावर 4 इंटू 25 इज 100, मतलब कि 10 रेज टू पावर 2. और ये है 10 रेज टू पावर माइनस 8. ये सारा सॉल्व करके बनता है 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34. फिर न्यूमरेटर के अंदर जब लेके आओगे माइनस 6 की जगह प्लस 6 बनेगा. एंड इट विल बी 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 28 एंड मीटर पर सेकेंड में आंसर. तो आंसर बन रहा है सी पार्ट. बी केयरफुल, ए के अंदर माइनस 34 दिया था बट आपका आंसर बन रहा है माइनस 28. सो सी इज योर आंसर. गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ. E1, E2, E3 they represent the kinetic energy of electron and alpha particle and proton. एक E1 दिया आपको इलेक्ट्रॉन के लिए, E2 दिया है अल्फा पार्टिकल के लिए, E3 दिया है प्रोटॉन के लिए. एंड दे हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ. लैम्डा सबका सेम है. देन किसका एनर्जी ज़्यादा है, किसका कम है, वो ऑर्डर देना है, सीक्वेंस लिखना है. E1, E2, E3. देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2me. दिस रिलेशन वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन. हमारे क्वेश्चन ने सबका वेवलेंथ सेम दे दिया. एज अ रिजल्ट मास जिसका हाई होगा उसका एनर्जी कम होगा. कैन आई से लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3. क्वेश्चन ने मास लैम्डा इक्वल दिया. इट मीन्स m इंटू ई अंडर द रूट इज कॉन्स्टेंट. गॉट इट. सो हाई मास हायर इज द mass of the particle lower is the kinetic energy. तो आपके पास मास किसका हाई है? सबसे ज्यादा मास है अल्फा पार्टिकल का, उसके बाद मास है प्रोटॉन का, उसके बाद मास है इलेक्ट्रॉन का. तो जिसका हाई मास उसकी काइनेटिक एनर्जी कम. तो इट मीन्स E2 विल बी लेस. उसके बाद E2 के बाद आएगा E3. कैन आई राइट हेयर E2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा E3, उसके बाद आएगा E1. गॉट इट. तो ये हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं. ये E3 लिखा है. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन प्रोटॉन. अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना हैवी होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है. हमें ये सब क्लियर है. एज अ रिजल्ट हमारा आंसर क्या बना? हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ पार्टिकल E1, देन E3, देन E2. लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. E1 मोर देन E3, देन E2. गॉट इट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. Let's come to the next now. Last question. A particle of mass 1 microgram is moving with the speed of 1 kilometer per second. Then the de Broglie wavelength of the particle is. Let's apply lambda is equal to h upon
mv और मास है 10⁻⁻6 ग्राम्स, माइक्रोग्राम दिया था, दिस वॉज गिवन इन माइक्रोग्राम्स। तो अब आप इसको कन्वर्ट करोगे फाइनली किलोग्राम के अंदर। कैन इट बी रिटन इन किलोग्राम एज 10⁻⁻9 किलोग्राम हो गया। 1 microgram is 10⁻⁻6 grams and 1 gram is 10⁻⁻3 kilograms. Therefore 1 microgram में किलोग्राम कितने हुए? 10⁻⁻9। Got it? तो ये सारा एक्सप्रेशन ठीक से लिखना है। उसके बाद सिंपल वैल्यू पुट करनी है। लैम्डा इज h/mv, h का वैल्यू कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10⁻⁻9 जो कि केजी में है, और वेलोसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 1 किलोमीटर पर सेकेंड इज गिवन, 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आपके पास ये जो वैल्यू है किलोमीटर के अंदर, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मीटर में लेके आनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसको 10⁻³ कर देते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड बना दिया। गॉट इट? सो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास बनेगा 6.626 10⁻⁻34 इन द न्यूमरेटर एंड 10⁻⁻6 in the denominator. You will get 6.626 into 10⁻⁻28 और लैम्डा है तो यूनिट्स मीटर्स के अंदर। गॉट इट? तो बी ऑप्शन आपका आंसर 6.626 into 10⁻⁻28. So that is all about the lecture. We have taken up questions on Bohr's model, particularly the concept of radius and velocity and energy calculation. How one orbit is different from the other in terms of energy, in terms of velocity of electron, even radius, even angular momentum. And when electron jumps from one orbit to the other orbit, then how to calculate the energy value, the difference between the energies, and even question on ratio of energies of various orbits we have taken up. And dual nature was given by the de Broglie concept, which was having a relation between lambda and velocity. Lambda means wavelength and velocity of particle, and wavelength and energy of electron or energy of any other particle, lambda is equal to h/√2mE. And the main thing you have taken up is that the units should be same. Many times mass is given in grams or it is given in micrograms. Ultimately you have to bring it to SI units, that is in kg. And lambda will be calculated in meters, but sometimes they ask in nanometers, sometimes they ask in angstrom. And first we will be doing calculation in meters. Ultimately we will convert according to the requirement of the question. Got it? Even the question on Heisenberg uncertainty principle we have taken up. So ये जो dual nature है, जो Heisenberg uncertainty principle है, they are explaining the failure of the Bohr model. बोहर ने एक fixed concept का idea दिया था जो कि गलत हुआ। dual nature का तो मतलब ही यही है कि particle के पास wave character भी है। वेव करेक्टर है अगर तो फिर फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं हो सकता, वेव के बारे में सर्टन नहीं हो सकते, वेव के बारे में तो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ही बोलना पड़ता है। गॉट इट? So you can revise the concepts, Bohr model, and then failure of Bohr model with the help of dual nature, the de Broglie equation and uncertainty principle. In the next lecture we will be coming up to the concept of orbitals. उसमें difference between orbit and orbital देखेंगे, and then quantum numbers will be taken up. Those numbers will give the complete address of the electron. electron atom के अंदर कहाँ कहाँ situated है वो सब हम next lecture में देखेंगे. That is all about this lecture, and hope you are enjoying the benefits of our lectures. Make sure you subscribe to the channel for more videos, and it will help you to revise the topic in a better manner, right? Thank you and bye bye.